تو ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہماری صبح ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے موبائل، صبح ہوئی جس قوم کی شروعات صبح قرآن پاک سے ہوتی تھی، آج اس قوم کی شروعات صبح فیس بک اور واٹس ایپ سے ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور آج ہم پستی کا شکار ہیں، ہم شکایتیں کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج پستی کا شکار ہے، آج ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ ہم نے سرکار کے طریقے کو چھوڑ دیا، دامن ہاتھ میں ہے، طریقہ چھوڑا ہے تو نوبت یہاں تک آ گئی، اور اگر دامن چھوڑ گیا تو دنیا آخرت سب تباہ ہو جائے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اور خود اپنے آپ کو سنبھالو۔ کچھ بنو یا نہ بنو لیکن سرکار کے وفادار بن کے رہنا۔ کیا بات، بے شک، سبحان اللہ۔ سرکار کی محبت اپنے سینے میں بسا کر کے رکھنا۔ گرامی، ہم تو آستانے پر جاتے ہیں تو بس اسی امید کے ساتھ، اگر آپ بھی جاتے ہو اسی امید کے ساتھ تو آپ ساتھ دینا، اگر نہیں جاتے ہو اسی امید کے ساتھ تو ساتھ مت دیجیے۔ لیکن میں تو جاتا ہوں، میری آرزو تو یہی ہوتی، چاہے آج میری الحمدللہ حاضری ہوئی سرکار سید سارار مسعود غازی علیہ الرحمہ کی بارگاہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ دن پہلے میری حاضری ہوئی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں، اس سے پہلے میری حاضری ہوئی سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں، اس سے تھوڑے دن پہلے میری حاضری ہوئی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی بارگاہ میں، اس سے تھوڑا سا پہلے میری حاضری ہوئی امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں، اور اس سے تھوڑا وقت پہلے میری حاضری ہوئی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنی میری اوقات رہی، یہ تو صرف کرم ہے ان کا، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو صرف کرم ہے ان کا، مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب تمام آستانوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، آپ غازی پاک کے آستانے پر جائیں کہ چوچھا مقدسہ میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آستانے پر جائیں، مانک پور شریف میں سیدنا شیخ حسام الدین مانک پوری کی بارگاہ میں جائیں، جہاں سے میرا تعلق ہے الحمدللہ، جہاں کا میں غلام ہوں، جس آستانے پر آپ جائیں، میری جو تمنا ہے تمہارے در کی مٹی سان کر ماتھے پہ ملتا ہوں۔ وہ نسبت والے ہیں، شیر پر سمجھ نہ رہے۔ فاروق بھائی، جتنے بھی ہمارے ممبئی کے آئے ہوئے مہمان ہیں ان سے خصوصی توجہ، اور آپ تمامی حضرات، تمہارے در کی مٹی سان کر، آٹا نہیں سانتے ہیں، گونتے ہیں نا بھئی، آٹا گون کر کے جیسے روٹی بناتے، تمہارے در کی مٹی سان کر ماتھے پہ ملتا ہوں۔ کیوں ملتا ہوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تمام آستانوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور شعر کو سنیں، تمہارے در کی مٹی سان کر ماتھے پہ ملتا ہوں، مرمت کر رہا ہوں ان دنوں پھوٹے مقدر، مرمت کر رہا ہوں، مرمت کر رہا ہوں ان دنوں پھوٹے مقدر کی، تمہارے در کی مٹی سان کر ماتھے پہ ملتا ہوں، مرمت کر رہا ہوں ان دنوں پھوٹے مقدر کی، مرمت کر رہا ہوں ان دنوں پھوٹے مقدر کی۔ حضرات گرامی، بہت اچھے اچھے شعر آپ نے سنے، اور بس دو شعر میں بھی ترنم میں پڑھ دوں، سید صاحب قبلہ کی موجودگی ہے ایک کربلا والوں کے تعلق سے، اور ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، آج تو ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہماری صبح ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے موبائل، صبح ہوئی جس قوم کی شروعات صبح قرآن پاک سے ہوتی تھی، آج اس قوم کی شروعات صبح فیس بک اور واٹس ایپ سے ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور آج ہم پستی کا شکار ہیں، ہم شکایتیں کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج پستی کا شکار ہے، آج ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ ہم نے سرکار کے طریقے کو چھوڑ دیا، دامن ہاتھ میں ہے، طریقہ چھوڑا ہے تو نوبت یہاں تک آ گئی، اور اگر دامن چھوڑ گیا تو دنیا آخرت سب تباہ ہو جائے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اور خود اپنے آپ کو سنبھالو۔ کچھ بنو یا نہ بنو لیکن سرکار کے وفادار بن کے رہنا۔ کیا بات، بے شک، سبحان اللہ۔ سرکار کی محبت اپنے سینے میں بسا کر کے رکھنا، اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے سینے میں بسا کر رکھنا۔ ڈاکٹر اقبال کا انتقال ہو گیا تھا، مجھے بڑی اچھی بات یاد آ گئی، ڈاکٹر اقبال کا انتقال ہوا، وصال ہو گیا، وصال کے بعد کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا ڈاکٹر اقبال کو، تو پوچھا ڈاکٹر اقبال ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اللہ نے انتقال کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا معاملہ کیا؟
इंतकाल के बाद डॉक्टर इकबाल कहते हैं बड़ी नातें लिखी थी, बड़ी मनकबतें लिखी थी, ना जाने कैसे कैसे अशार लिखे थे, लेकिन अल्लाह ने एक शेर की बुनियाद पर मेरे बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया। अहले इश्क की तवज्जो चाहता हूँ, अहले अदब की तवज्जो। एक शेर की बुनियाद पर मेरा बिगड़ा हुआ नसीबा संवर गया। अरे यार, अल्लाह कादिर मुतलक है, वो ऐसा करीम है, ना जाने हमारी कौन सी अदा पसंद फरमा ले और हमारा बेड़ा पार। इसलिए हमेशा इस चीज का ख्याल रखें। डॉक्टर इकबाल का इंतकाल हो गया, लोगों ने ख्वाब में देखा, कहा डॉक्टर साहब आपका इंतकाल हो गया, अल्लाह ने क्या मामला किया? डॉक्टर इकबाल कहते हैं मेरे एक शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया, मेरी मगफिरत फरमा दी, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया, मेरी तकदीर संवर गई। लोगों ने कहा डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही वो शेर कौन सा था जिसकी बुनियाद पर आपका नसीबा संवर गया? डॉक्टर इकबाल ने कहा था सुनो सुनो, बड़ी नातें लिखी थी, बड़ी मनकबतें लिखी थी, न जाने कैसे कैसे अशार लिखे थे, पूरी कुल्लियात इकबाल हमारी निगाहों के सामने है। लेकिन अजीब मर्द कलंदर, कसम खुदा की वो ऐसा मर्द कलंदर था जो 100 साल पहले बातें लिखी थी किताबों में, आज हमारी निगाहों के सामने है। उस वक्त डॉक्टर इकबाल ने कहा था वसा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो नूर, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माई हो, मस्जिद मरसिया खा है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। जो बातें उस मर्द कलंदर ने 100 साल पहले लिखी थी आज हमारी निगाहों के सामने है। लोगों ने कहा डॉक्टर इकबाल जरा बताइए तो सही कि विसाल के बाद क्या मामला हुआ? डॉक्टर इकबाल ने कहा था मेरा मामला तो ये हुआ कि अल्लाह ने एक शेर की बुनियाद पर मेरी मगफिरत फरमा दी, एक शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया, एक शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी। लोगों ने सवाल किया था ए डॉक्टर इकबाल जरा बताओ तो सही वो शेर कौन सा है जिसकी बुनियाद पर मेरा तेरा बिगड़ा हुआ नसीबा संवर गया, जिसके बुनियाद पर तेरे बिगड़े हुए मुकद्दर संवर गए, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी। डॉक्टर इकबाल जरा बताओ तो सही वो शेर कौन सा है? डॉक्टर इकबाल ने जवाब दिया था सुनो सुनो, नाते तो बहुत थी, मनकबत तो न जाने कितनी थी, लेकिन एक वो शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे बिगड़े हुए नसीबों को संवार दिया, वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर वारिसे पाक, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, वाह वाह, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, लौहो कलम वाह, तेरे वाह। हैं। तो हज़रात गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सरकार से भी मोहब्बत करने वाले हैं और सरकार की आल से भी मोहब्बत करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले बैठे अतहार से मोहब्बत करने वाले हैं कि नहीं है ना? तो हज़रात गिरामी अपने बच्चों को सिखाइए कि सुबह उठे तो कुरान पढ़ा करें, और यही पैगाम है इस उर्से रफीकी का कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो इंसान है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाए। और जो खानकाहे वारसिया वडाला मुंबई में है उसके बारे में अभी हमारे मोहम्मद भाई थे और उन्होंने मशवरा किया कि इंशाअल्लाह ताला वहां पर भी बहुत जल्द एक अच्छे कारी कुरान को रख करके रोजाना कुरान पाक की तालीम को आम किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खानका का मकसद यही है कि कुरान पढ़ना सिखाया जाए, इस्लाम का तरीका सिखाया जाए, शरीयत की तालीमात सिखाई जाए, नमाज पढ़ना सिखाया जाए, नमाज पढ़ने के बारे में जो फजाइल है वो सारी चीजें सिखाई जाए। इसलिए हज़रात गिरामी इस बात को अपने जहन में रखें। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को इस्लाम सिखाएं, अपने बच्चों को शरीयत की तालीमात सिखाएं। आज हमारे मामलात बदलते जा रहे हैं। आज हमारा बेटा अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो हमें फख्र महसूस होता है, लेकिन हमारा बच्चा कुरान ना पढ़े तो हमें एतराज नहीं होता। आज हमारे घर के अंदर का माहौल कितना बदलता जा रहा है। आज हमारी लड़कियां घर से बाहर निकल करके बेपर्दा टहलती हुई नजर आती हैं। ताज्जुब इस बात पर नहीं है कि हमारी औरतें बेपर्दा होकर के बाजार का चक्कर लगाती हैं, ताज्जुब तो इस बात पर है कि हमारी औरतें उन घरों से बाहर निकलती है जिन घरों में मर्द रहा करते हैं। अरे यार, तुम अपने आप को इंसान कहते हो, तुम अपने आप को कहते हो कि मैं किसी का बाप हूँ, तुम अपने आप को कहते हो मैं किसी की माँ हूँ। हमारी माँ बहनें भी कान खोल करके तवज्जो के साथ सुनना। आज हमारे मामलात ये है कि हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए तैयार रही है, अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए तैयार रही है, अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से करीब करने के लिए तैयार रही है। एक वक्त था कसम खुदा की जब औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो उनका अंदाज ये होता था कि मैं दूध पिला रही हूँ। ऐ मेरे मौला, ये जो मेरे पिस्तान से निकलने वाला दूध है जब ये जा करके कैसा बने और मेरा बेटा जब उसकी नशो नुमा हो और वो परवान चढ़े तो मेरे मौला मेरा बेटा कुछ बने या ना बने,
लेकिन तेरे महबूब का वफादार बन जाए। ये खालिद बिन वलीद बनता हुआ नजर आए, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता हुआ नजर आए, ये मोहम्मद बिन कासिम बनता हुआ नजर आए। जब नीयत ऐसी थी तो बरकतें होती थी, ऐसी औलाद पैदा होती थी। इसलिए कि काला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जैसी नीयत होती है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का सारा दारोमदार बंदे की नीयत पर हुआ करता है। इसलिए हज़रात गिरामी, हमको चाहिए कि अच्छी नीयत कर ले, हम अपने बच्चों को अच्छा बनाने की नीयत कर ले। हमारी माए बहनों से गुजारिश है कि जब अपने बच्चों को दूध पिलाएं तो उनकी अच्छी नीयत होनी चाहिए, इसलिए कि जैसी नीयत होती है वैसी बरकत होती है। लेकिन आज तो हमारा मामला ये है, हमारी माए बहनें भी अपने बच्चों को सुलाना चाहती है तो वो सोचती है कि दूध पिला रही हूँ ताकि मेरा बेटा सो जाए, या बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया ताकि गेम खेलते खेलते सो जाए, या तो कोई कार्टून देखते देखते सो जाए। जब नीयत ये होगी तो बेटा एक्टर और खिलाड़ी पैदा होगा, बेटा सरकार का वफादार नहीं पैदा होगा, बल्कि ना जाने शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाला कैसा, शरीयत के तमाम फरामीन पर शरीयत के अहकाम की धज्जियां उड़ाने वाला, सरे बाजार फिरने वाला, ना जाने कैसा नाफरमान बेटा तुम्हारा पैदा होगा। उसके बाद तुम बाबा के पास चक्कर लगाओगे, उसके बाद जाओगे सैयद साहब किबला की बारगाह में, उसके बाद जाओगे शहजादे औसाफ मियां के पास कि हजरत ऐसा तावीज़ बनाइए ताकि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। मेरा बेटा तो अपनी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, माँ भी शिकायत करने के लिए तैयार होती है। यार बाबा के पास जाने में कोई बुराई नहीं है, सैयद साहब किबला के पास आने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सैयद साहब किबला की बारगाह में हाजिरी दे, यहाँ दुनिया भी सवर जाएगी इंशाअल्लाह, आखिरत भी सवर जाएगी। आप शहजादे के पास आए इंशाअल्लाह तारीन की सादत आपको मिलेगी, आप आस्थाने पर जाकर के सर झुका करके दुआ करेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखना, जो पैगाम अल्लाह ने कुरान पाक में दिया है, जो अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में दिया है, यार तुम्हारा बेटा अगर स्कूल में 3 दिन जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन जरा बताओ तो सही, तुम अपने आप को बाप कहते हो, तुम कहते हो हमारे 3 बच्चे हैं, एक मुंबई में रहता है, एक सऊदी में रहता है, तीसरा दुबई में रहता है, वहां से 20-20 हजार रुपए हर महीने भेजता है, तुम्हें बड़ा फख्र महसूस होता है। लेकिन हज़रात गिरामी जरा बताओ तो सही, तुम्हारा बेटा दुबई में है, सऊदी में है, मुंबई में है, 20-20 हजार रुपए, 60 हजार रुपए महीना भेजता है, तुम्हें बड़ा फख्र महसूस होता है। तुम चौराहे पर बैठकर चाय की दुकान पर ऐलान करते हो, मेरा बेटा 60 हजार रुपए कमा करके भेजता है, मेरा बेटा 50 हजार रुपए कमा करके भेजता है, मेरा बेटा तो फला जगह पर इंजीनियर हो गया है, मेरा बेटा फला जगह पर कंपनी का मैनेजर बन गया है। लेकिन जरा बताओ तो सही, तुम्हारा बेटा दीनदार कितना है, तुम्हारा बेटा सरकार का वफादार कितना है, तुम्हारा बेटा नमाज की पाबंदी करने वाला कितना है, तुम्हें एहसास नहीं होता? अरे यार तुम अपने आप को बाप कहते हो, बाप कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारा बेटा दीनदार ना हो, सिर्फ दुनिया कमाने के लिए निकल जाए, तुम फख्र महसूस करते हो, तुम बहुत कामयाब इंसान हो, तुम बहुत कामयाब बाप हो। अरे यार तुम्हारा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाए, अगर 3 दिन तुम्हारा बेटा स्कूल ना जाए तो माँ को भी तकलीफ होती है, बाप को भी बड़ी तकलीफ होती है। जानते हैं बाप कहने लगता है, बेटा तू 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं गया? सेंट जोसेफ सेंट मैरी में तेरा एडमिशन कराया है, 3 दिन से स्कूल नहीं गया, 2000 रुपए फीस मैंने तेरी जमा की है। माँ भी मारने के लिए तैयार हो जाती है। हज़रात गिरामी, आप अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के पास जाएं दुआ तावीज़ के लिए, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन एक नुस्खा दे करके फकीर कादरी यहाँ से जाना चाहता है कि उर्से रफीकुल औलिया के मौके पर यह हमें पैगाम मिला है। अरे यार तुम कामयाबी चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा कामयाब हो जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुकान में बरकत हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे मकान में बरकत हो। तुम्हारा बेटा स्कूल जाने के लिए सुबह तैयार हो गया, तुम्हारी बीवी उठ गई, उठने के बाद जल्दी से नाश्ता तैयार कर दिया, जल्दी से ड्रेस को निकाला, ड्रेस में प्रेस नहीं थे, जल्दी से प्रेस भी कर दिया, प्रेस करने के बाद टिफिन तैयार कर दी, शौहर भी तैयार हो गया, जल्दी से बाइक को निकाली, बाइक को साफ किया और सुबह ले जाकर के चौराहे पर या नानपारा ले जाकर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसको पहुंचाना है। इसलिए कि बेटा जाएगा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ेगा ताकि वो बहुत बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर फ्यूचर में बन जाएगा। हज़रात इकरामी, मैं इनकार नहीं करता, इस्लाम इस बात का मुनकिर नहीं है, आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर सब बनाओ, इस्लाम मुनकिर नहीं है। लेकिन सुनो सुनो, तुम चाहे तो तुम्हारे घर में बरकत हो, तुम चाहे तो तुम्हारी दुकान में बरकत हो, तुम चाहे तो तुम्हारा बेटा कामयाब हो जाए, एक नुस्खा लेकर के जाना। जब तुम अपने बेटे को बाइक पर बिठा करके स्कूल ले जाने के लिए तैयार हो जाते हो, सुबह में तुम्हारी आंख खुल जाती है। अरे यार जब तुम सुबह में तुम्हारी आंखें खुल गई थी, जब अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी, तुम्हारी आंखें खुल गई, तुम्हारी बीवी भी जाग गई थी, तुम्हारी बीवी जाग चुकी थी, बेटे को बेदार करने के बाद उसको तैयार करा रही थी, तैयार कराने के बाद बाइक पर तुमने बिठाना, अपनी स्कूटर पर बिठाना ताकि स्कूल बस में आए, स्कूल छोड़ करके आए। अरे यार जब तुम सुबह उठ ही गए थे तो इतना कर लेते, अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाते, अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज फज्र अल्लाह की बारगाह में सजदे की सूरत में अदा करते, उसके बाद आने के बाद बाइक पर अपने बच्चे को बिठा दे, बिठाने के बाद स्कूल बस में ले जाकर के बिठाते, ये स्कूल पहुंचा देते। कसम खुदा की, अगर तुम्हारा अंदाज होता, तुम्हारा बेटा कामयाब भी हो जाता, तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल भी होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफ़ा
मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारा बेटा कामयाब भी हो जाता, तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो जाता, लेकिन नहीं हमें फिक्र नहीं है, हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि एहसास तो हमारा मर गया है। हम अपने आप को बाप कहलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हमारा बेटा शरीयत की धज्जियां उड़ाता है हमें एहसास नहीं होता। अरे 3 दिन तुम्हारा बेटा स्कूल ना जाए तो उनको मारने के लिए तैयार रहने वाले माँ बाप कान खोल करके सुनना, उनसे रफीकुल औलिया का पैगाम लेकर के जाओ। अरे यार 3 दिन बेटा स्कूल ना जाए तो मारने के लिए तैयार हो गए, तुम्हारा बेटा न जाने कितने दिनों से फजर की नमाज अदा करने अल्लाह के घर में नहीं गया, हालांकि वो बालिग हो चुका है। ज़ोहर की नमाज उसने छोड़ दी, असर की नमाज उसने चौराहे पर गुजार दी, मगरिब की नमाज उसने चाय के अड्डे पर गुजार दी, इशा की नमाज उसने पुल पर बैठकर ब्रिज पर बैठ करके गुजार दी। कभी तुम्हें एहसास नहीं हुआ? अरे तुम बाप थे, क्या तुम्हारी ज़बान में ताले बंद हो गए थे? क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गई थी? अरे बाप थे तो बाप का एहसास करते। तुम अपने बच्चे से कहते बेटा फजर की नमाज तुझे पढ़ना चाहिए, तो आखिर बालिग हो गया है, नमाज पढ़ना तेरे ऊपर फर्ज है, लेकिन माँ को कभी एहसास ना हुआ, बाप की ज़बान कभी ना खुली। बल्कि हाल तो ये है कि नाफ के नीचे से लेकर के घुटने तक ये शरीयत का मसला यहाँ सीख लेना, इसलिए कि दीन का एक मसला सीख लेना पूरी रात इबादत से भी ज्यादा बेहतर है। नाफ के नीचे से लेकर के घुटने तक अगर लड़का बालिग है तो उसका कोई भी हिस्सा नहीं दिखना चाहिए, अगर कोई हिस्सा दिखेगा तो ये नाजायज़ और हराम है। सत्र औरत जिसे कहा जाता है, नाफ के नीचे से लेकर के घुटने तक कोई हिस्सा नहीं दिखना चाहिए अगर लड़का बालिग हो गया है। तो हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, ये शरीयत का मसला है, लेकिन हमारा बेटा जब जीन्स पैंट पहनता है वो कभी यहाँ फटी होती है, कहीं यहाँ फटी होती है, जिसकी बुनियाद पर सत्र औरत दिखाई पड़ता है। जरा सोचे तो सही, शरीयत की धज्जियां घर के अंदर उड़ती है, शरीयत की धज्जियां घर के बाहर बाजार में उड़ती है, चौराहे पर तुम्हारा बेटा टहलता है, सत्र औरत दिख रहा है, नाजायज़ और हराम तुम्हारे घर के अंदर है, नाजायज़ और हराम बाजार में है। अरे तुम कैसे बाप हो? क्या एहसास तुम्हारा मर चुका है कि तुम अपने बेटे को ये कहने के लिए तैयार नहीं हो बेटा ये हिस्सा नहीं दिखना चाहिए, नाजायज़ और हराम है शरीयत में? क्या माँ को ये एहसास नहीं होता कि माँ अपने बेटे को समझाए कि बेटा ऐसा नहीं दिखना चाहिए? माँ के सामने बेटियां मोबाइल पर न जाने कैसे कैसे गंदे गाने देखें, न जाने कैसे कैसे ड्रामे देखें, लेकिन माँ की ज़बान में ताले बंद हो जाए, उन्हें एहसास ना हो। याद रखना, अगर बेटे ने अच्छा काम किया तो उसको तो सवाब मिलेगा, लेकिन बेटे ने अगर गुनाह किया तो माँ बाप के मरने के बाद बेटे के गुनाह की बुनियाद पर बेटा तो गुनहगार होगा, लेकिन साथ ही साथ माँ बाप को भी कब्र में अज़ाब दिया जाएगा, माँ बाप को भी बेटे के गुनाह की बुनियाद पर कब्र के अंदर अज़ाब दिया जाएगा। इसे हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बस्मे मुस्तफ़ा के लिए। बस एक रिवायत सुनाता हूँ, उसके बाद मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि सैयद साहब क़िबला को सफ़र करना है, उनकी फ्लाइट है सुबह में। इसलिए हज़रात गिरामी एक बात सुन लें, जो लोग बाप होने का एहसास नहीं करते, जो लोग माँ होने का एहसास नहीं करती, हमारी माएँ बहनें आप भी कान खोल करके सुनना, कसम खुदा की ये दुनिया तो 4 दिन की है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, क्या ठिकाना है जिंदगानी का, इंसान तो बुलबुला है पानी का, लेकिन एक दिन इंसान तो मर के चला जाएगा, कोई यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये अल्लाह का फरमान है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन व ला यस्तक़दिमून, ये अल्लाह का फरमान है। जब मौत का वक्त आ जाता है ना तो उसमें एक सेकंड भी तब्दीली नहीं होती, उसमें एक लम्हा की गुंजाइश नहीं होती, उसकी रूह कब्ज़ उनसरी से परवास कर जाती है, इंसान दुनिया से चला जाता है, लब्बैक कहते हुए वो आखिरत की तरफ चला जाता है। हज़रात गिरामी जाना तो सबको है, चाहे बचपने में चला जाए या जवानी के आलम में चला जाए या बुढ़ापे में चला जाए, लेकिन एक ना एक दिन जाना सबको है। लेकिन हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, हमने क्या तैयारी की है? अगर तुम दुनियावी बाजार में जाओ और जाने के बाद अगर तुम्हारी जेब में पैसे ना हो, या मोबाइल पर फोन पे गूगल पे और पेटीएम की सुविधा ना हो, अगर ये चीजें अवेलेबल ना हो, या मोबाइल तुमने घर में छोड़ दिया है, उसके बाद तुम बाजार गए, सुपर मार्केट में गए, जाने के बाद सामान ले लिया, जेब में हाथ डाला, पैसा ही नहीं है, बड़ा अफसोस होगा, अरे यार पैसा तो हम घर में भूल आए, पर्स तो हमने घर में भूल करके हम आ गए हैं, मोबाइल तो हमने घर में छोड़ दिया है, हमें बड़ा अफसोस होता है इसलिए कि दुनियावी बाजार में हम आए हैं और हमारे पास कोई सामान लेने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन हज़रात गिरामी ये दुनियावी बाजार है, हो सकता है पैसा देने वाला कोई मिल जाए, या दुकान वाला तुम्हारी पहचान का हो जिसकी बुनियाद पर सामान तुम्हें उधार मिल जाए, या तुम किसी से बार कोड ले करके उसे स्कैन करके उसकी फोटो लेकर के किसी को भेज दो, तुम्हारा दोस्त पैसे को पेमेंट कर दे, इस तरीके से काम बन जाए। लेकिन हज़रात गिरामी जरा बताओ तो सही, जब बंदा दुनिया से आखिरत का सफर करता है और जब आखिरत की तरफ बंदा जाता है तो उस वक्त अगर उसके नामे अमाल में नेकियां नहीं होगी, नमाजों की दौलत नहीं होगी, हज और ज़कात की दौलत नहीं होगी, तो सुनो सुनो अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जब बंदे के नामे अमाल में नेकियां नहीं होती, नमाजों की दौलत नहीं होती, रोज़ों की दौलत नहीं होती, हज और ज़कात की दौलत नहीं होती, जब बंदे के नामे अमाल में नेकियां नहीं होती, ऐसा बंदा जब कब्र में उतारा जाता है तो अल्लाह
اللہ رب العزت ان بندوں پر ایک ایسا اژدہا مسلط فرما دیتا ہے، ایک ایسا سام مسلط فرما دیتا ہے، اگر وہ ایک پھونک مار دے تو ساری دنیا کے لوگ ہلاک ہو جائیں، اگر وہ ایک مرتبہ پھونک مار دے تو ساری دنیا کے لوگ مر جائیں۔ اتنا خطرناک اژدہا اللہ اس کی قبر میں بھیج دیتا ہے جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوتی۔ ذرا بتاؤ تو صحیح ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے کتنی پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی ہے، ہم نے کتنی پابندی کے ساتھ روزے رکھے ہیں، ہم نے شریعت کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے نہ جانے کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ شیخ سعدی نے بہت پہلے کہا تھا انسان کتنا نادان ہے، زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے لگتا ہے کبھی سے مرنا نہیں تھا، اور مر کے ایسے چلا جاتا ہے جیسے لگتا ہے کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن حضرات گرامی عجیب و غریب معاملہ ہے، قبر میں جانے کے بعد وہ تمہارے دوست و احباب، تمہارے خاندان کے لوگ، وہ جن کے ساتھ ایک ایئر فون تم اپنے کان میں لگاتے تھے، دوسرا ایئر فون اپنے دوست کے کان میں لگا کر کے نہ جانے کیسے ڈرامے تم دیکھا کرتے تھے، نہ جانے کیسے کیسے گندے گانے سنا کرتے تھے، تم کتنا نہ جانے کتنے میچ اور کھیل دیکھا کرتے تھے۔ حضرات گرامی ذرا سوچو تو صحیح، آج تمہارے دوست نے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد ایک لمحہ رکنا گوارا نہ کیا، آج تمہارا باپ بھی قبرستان پر رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج تمہارے بھائی بھی قبرستان پر رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بریلی کے امام عشق محبت نے بہت پہلے کہا تھا، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، وہاں تو 5 جائیں گے 4 واپس